Can I please welcome co-producers as well, Ashwini Sidwani from SMR Entertainment, Ashish Aryan, who played a key role Yes. in bringing this story to Sid and Nagraj. Can I please have Sahira Nair, head of Hindi scripted series Prime Video India, along with Stuti Ramachandra, director and head of production and post International Originals Prime Video India. क्या बात है, what an incredible moment इस स्टेज पर अब मौजूद हैं वो चेहरे, the faces, the forces and the minds behind this amazing story. लेकिन निखिल के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Can I please have the one and only Nikhil Madok? Right here, ladies and gentlemen, the world of Matka King. Thank you so much to the wonderful cast and creators for being here today. मैं Jamie, Girish, Simran, along with our producers Ashwini, Ashish, Sahira and Suti से request करूंगी to kindly take your seats. The rest of you, can I please request you to stay back as we open the floor for a quick Q&A. As the seats get sajod behind you, you know what I love is the attention to detail. ये वाली जो कुर्सियां है ना, these are actually the कुर्सियां जो and our attention to detail. Okay, you can do polka dots, but you want to do them right, you got to do it like this. Okay, so this is, ma'am, have a seat, please. There will be indications on some seats where you need to have a seat. Nikhil, I think your chair is on this side. Nikhil, right there. Please have a seat. सिद्धार्थ जी, मेरे ख्याल से ये मेरी सीट होगी. एक और चेयर आनी बाकी है ना? इसके अलावा भी एक और आनी बाकी है ना? आ गई. बहुत ही बढ़िया. बसा बसा इधर बसा. ओके सर. तो ये एक्स्ट्रा है क्या? एक्सक्यूज मी, ये वाला आप ले जाएंगे? Thank you so much. Let's take, I'm going to take a moment and settle down because I feel like I'm in the 60s with all of you. This is such, can I please ask for a round of applause for this amazing show already? Yeah, मजेदार. निखिल, I want to start with you. I want to say, अब लोगों ने देख लिया. पिछली बार जब हमने बात किया था, you were giving us hints, but now we've seen this world. Now can you tell us a little bit more? What made you say yes to Matka King? So, typically, and even in this case, of course, the story was extremely important to us. But I want to give you a different and honest answer. Thank you. Which is that in this particular case, it was actually the makers involved with Matka King which drew us to this story. Both Saira and I have been looking to collaborate with Siddharth and Roy Kapoor films for a long time, and we finally managed to do this with Matka King. We're, of course, fantastic fans of Mr. Nagraj Manjule. His work is so inspiring. And when I first heard the story from Abhay about 2.5 years ago, it was that moment where you hear something and say, this is special, and we really want to go after this. So, of course, the story is amazing. It's such a beautifully told story, but I think the three people involved that I mentioned were the real reason why we said we want to say yes to the story. I'm so glad you said yes, and I'm so glad for these three. In fact, I'm going to one of them right away. Siddharth Roy Kapoor, thank you so much for bringing us such a refreshing looking show, if I may say that. I would say it's kind of fighting to be my favorite era. I thought it was the 70s, but the 60s now, because of this show, might seem to be winning. I want to ask you what excited you most about this partnership, and what are you most happy about? What part of this coming to life gave you life? So, Roni, quite a few things actually. Like Nikhil said, there isn't just one thing. I mean, firstly, the world of Matka,
the fact that this was something that in the 60s and the 70s people would put their money into with the expectation that that money would come back in a time when the country was going through so many financial difficulties. Here was something that they could actually rely on. The delicious characters, in the show, the fact that I was getting to work with Nagraj ji. He's someone that I've admired for a very, very long time. After I saw Sairat, I had decided that I have to work with him on something. And like Nikhil said, the fact that Amazon and us have been meaning to work for a long time, and then this was just the best project to work on together. I just want to say a special shout out to the Amazon team, Nikhil, of course, Saira, who's been a rock behind this entire project and been, with us and sort of creatively collaborated with us all the way. Stuti, who's been a great partner on the production side, and their entire team. Abhay is someone that I've worked with on Rocket Boys before this, and having him write this show was a tremendous thing because he's a super talented writer and a creative collaborator. And my team at Roy Kapoor Films, Jinesh, Bharti, and the entire team that's worked so hard on it. So I just want to say that it's been a wonderful few years, putting the project together, literally blood, sweat, and tears. And I'm so glad that we're all here today. Well, thank you so much for those acknowledgements because they mean a lot. Look at the smiles on those faces. It's almost like, today the baby's out and they're going to see the world. Well, the release date will be that day, but today feels special as well, right, girls? I'm going to take my attention to नागराज सर. नागराज सर, I just want to say कि बहुत बड़ा फैन मोमेंट चल रहा है मेरा इस वक्त. मैं बैठी कैसे हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन thank you so much for the amazing cinema that you've given us, and can I please request my friends who love the movies to give a round of applause to Mr. Nagraj Popat Rao Manjuli. 60s का बम्बई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. I wanted to ask you, what were the elements that you knew you had to get right from the start? नमस्ते. देखिए, ये जो कहानी है, ये कहानी का समय वो है, और मुझे लगता है कोई भी किरदार अपने समय का अपत्य होता है और समय की देन होता है. और जब हम कोई किरदार लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो समय बहुत उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और उस समय सारे चीज़ों को शेप देता है. तो वो कोई मुश्किल काम है नहीं कि आपने कैसे 60s का वर्ल्ड किया. ये अपनी देन है. और मेरी सारी जो टीम है, प्रोडक्शन डिज़ाइन से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, मेकअप से लेके, सारे लोगों ने, एक्टर, राइटर, सारे लोगों ने वो ये दुनिया बनाई है. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सोचना था और जिस किरदार के बारे में आपको बोलना था वो ज़रूरी था. एक बार वो हो गया तो अपने आप ये दुनिया उसके इर्द गिर्द बनते गई. क्या बात है. थैंक यू सो मच नागराज जी फॉर दैट. अभय, आई एम गोइंग टू टेक दिस टू यू. ब्रिज भट्टी जो है ये कहानी के मुख्य किरदार तो हैं ही, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट जब आप इनकी कहानी लिख रहे हैं, व्हाट इज द थिंग दैट यू थिंक मेक्स हिम अ कंपेलिंग कैरेक्टर, ताकि आप इतना वक्त उनके साथ भी बिताए ना. I think what makes Brij Bhatti compelling is he is a man of the time. तो हमारी कहानी 60s और 70s में based है. Like Sid said, this was the period when the dreams and hopes of Nehruvianism was kind of fading away. और आदमी को सिस्टम के लिए बहुत सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे ऐसे फील हो रहा था. तो उस दौरान एक ये कैरेक्टर इमर्ज होता है. एंड लाइक विजय मेंशन्ड अर्लियर दैट ही इज टेकिंग ऑन द सिस्टम, पर बहुत ईमानदारी से करता है. तो वो जो मटका चला रहा है वो इलीगल है, बट उसका एक उसूल है, उसका एक मोरालिटी है जो सोसाइटल मोरालिटी से अलहदा है. But he has his own morality and he's very proud of it, and he makes an entire world out of it. So that was super compelling to me. Well, thank you so much for sharing. Vijay, I think this is a nice, passover. You just said that Vijay's character, the reason why. So ब्रिज भट्टी की ही बात करेंगे आपसे. ये जो आदमी है वो अपनी जगह पहचानता है और फिर कहता है कि मैं अपने से कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, बड़ा बनाने वाला हूँ. I don't know what I can ask you without asking for a spoiler, लेकिन tell us a little bit more about Brij Bhatti without giving us a spoiler. So Brij Bhatti पार्टीशन के बाद, पार्टीशन के दौरान सिंध से बॉम्बे आया 7-8 साल की उम्र में, और उसके साथ एक छोटा भाई था, उससे 3-4 साल छोटा, और आके यहाँ पर सड़कों पे जीना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जीवन को
अपनी खाना ढूंढना, काम ढूंढना, यहाँ काम करना, वहाँ काम करना. शो में हम जब ब्रिज से मिलेंगे तब वो ऑलरेडी शादी कर चुका है, बीवी पेट से है, घर है उसके पास ठीक ठाक है, एक मैनेजर की जॉब है, लेकिन सपने देखना अलाउड नहीं है उसको. मिडिल क्लास आदमी की मोरालिटी अलग होती है, अमीर आदमी की मोरालिटी अलग होती है, गरीब आदमी की मोरालिटी अलग होती है. ही वांट्स टू क्वेश्चन दैट. ही वांट्स टू से कि अगर बड़ा आदमी सपना दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता है. अगर वो अपनी किस्मत के साथ खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता है. तो हिज एंटायर क्वेस्ट इज टू फाइंड आउट why he is not allowed to dream, and he wants to dream big, which is very similar to the life that I've led. That is true. There is something there that takes Bridge Bhatti closer to Vijay Varma then. मैं एक सूटकेस लेके 3 जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी जूते और एक पेटी भर के किताबें लेके बॉम्बे आया था. So I feel like that was the connection that I found with the character. Well, hats off to that. Thank you so much, Vijay, for sharing that with us. That is so beautiful. Kritika, Gulrukh jo hai seems to be stepping into a world which is very different from the one she comes from. तो ये कॉन्ट्रास्ट मुझे तो बड़ा मजेदार लग रहा है. तुम्हें कितना मजेदार लगा? मुझे भी बहुत मजेदार लगता है ये. I think take that mic, yeah. सॉरी, माय बैड. हेलो. मुझे भी बहुत मजेदार लगता है ये रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड पावर. Yeah. बहुत फैसिनेटिंग होता है. और गुलरुख जिस दुनिया से आती है उसके पास वो सब चीज़ें जो हमें लगता है हमें पावरफुल बनाती हैं. पैसे, प्रिविलेज, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आती है, बट फिर भी शी फील्स पावरलेस, एंड दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग. और कैसे उसे मीनिंग, पर्पस और जो उसकी जर्नी है इस शो में वो पावरफुल फील करवाती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. एंड अनलाइक विजय, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दिस कैरेक्टर. आई कैनॉट आई डिडंट, my upbringing and Gulrukh's upbringing have nothing in common. So it was also interesting to step into somebody who comes from privilege and is looking for power to be liberated. How interesting. How interesting. I can't wait to actually see that in the show. Okay, I think some hard relate might happen. Thank you so much for that. Did I just say I come from privilege? We all do, a little bit. We've got our own privileges. Sahi, I'm going to take this to you. I loved what you said when you stepped out of that box. And it gave me so much insight into your character that you're not just his wife. There's something more. There's something more that you are exploring while this world is unfolding around you. मतलब बता तो नहीं सकती, लेकिन बता दो दीदी, थोड़ा सा तो अपना आर्क हमारे साथ शेयर कर ही लो. मुझे लगता है बरखा धमाकेदार है. आई लाइक विमेन विथ स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, और बरखा हैज अ very strong voice. I like women with spine as well. मुझे लगता है बरखा का भी spine है, और मुझे वो औरतें पसंद हैं जो खुद के लिए कुछ करना चाहती है. और बरखा is somebody who wants to do something, who wants to be independent खुद के लिए. तो ये लड़की मुझे बहुत ही धमाकेदार लगी. और शुरुआत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ मैं रिलेट कर पाऊँ, लेकिन towards the end, I think Barkha ka और सई का full संगम हो गया, and they just, they flowed. Merged. Yeah, they flowed. Yeah. Well, thank you for that. Gulshan Grover, this is the moment I've been waiting for. Yes, my dear. There are just too many characters that are immortal with your presence. And here you are making another attempt to give us another character. लालजी भाई, मुझे लग रहा है कि अब हमारे जहन से निकलने नहीं वाले हैं. मुझे आपसे पूछना है, what did you enjoy the most? Because as long as Gulshan Grover is having a great time, the audience is having an even better time. What was it like for you? मैं शुरुआत में तो ये कहना चाहता हूं कि OTT जब से भारत देश में आया है, मैंने सिर्फ 2 OTT में काम किया है. लास्ट OTT डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज. मैंने अपना मन बना लिया था कि अच्छा खासा ब्रांड बना लिया है, लोगों का इतना ढेरों प्यार, रिकग्निशन सब मुझे मिल रहा है लगातार. अब मैं वो काम करूंगा जो मुझे फैसिनेट करेगा, जिसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मुझे ड्रॉ करेंगे एज एन एक्टर. बिल्कुल. जब मैंने मटका किंग के रोल और प्रमाइस को सुना, जिसका आइडिया थोड़ा सा मुझे
क्या कहते हैं कि दिया गया, डायरेक्टर के बारे में सुना। डायरेक्टर के बारे में पहले से ही सुना हुआ था। प्रोड्यूसर इसमें सिद्धार्थ राय हैं, अश्विनी जी हैं और दूसरे भी प्रोड्यूसर्स हैं, अमेजॉन भी प्रोड्यूसर हैं। ये सारे एलिमेंट्स को सुना। It is an extremely interesting coming together of people that I look up to for their talent. तो ये एक पॉजिटिव स्टार्ट हो गया था। फिर जब मैं नागराज जी को मिला, उससे पहले अक्सर मैं मीडिया वाले मेरे दोस्तों को कहता हूं, सुनता मैं किसी की नहीं, मानता मैं किसी की नहीं। करेक्ट है भाई? हर फंक्शन में बोलता हूं, बोलता इधर खड़े हो नागराज, सुनता मैं किसी की नहीं, मानता मैं किसी की नहीं। पहली बार मुझे इतना फैसिनेटिंग डायरेक्टर मिला। आप पूछिए पूरे शो के दौरान आई जस्ट लिसन टू हिम, बिकॉज आप यकीन मानिए जब आप मटका किंग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो आपको यकीन आएगा। आपके टाइप का है नहीं है वो एक अलग बात है, पर आपको यकीन आएगा कि किस प्रकार से इस डायरेक्टर ने एक बहुत खूबसूरत वेब सीरीज क्रिएट की है with the tremendous participation of Amazon and the wonderful producers, writers, जिन्होंने सोचा है, showrunners and everybody. But मैंने इतना ज्यादा ध्यान से नागराज जी को सुना, यहां तक के I don't know if I can share this, but एक दिन मुझे लगा यार ये मुझे सेम कपड़े क्यों पहना रहे हैं, ऐसे ही कपड़े पहना रहे हैं यार, क्या है? And I saw there was a big scene in a government office. I go and I had a logic that I would get dressed in my best. तो मैंने जो मुझे कॉस्ट्यूम दे रहे थे उनको कन्विंस किया, कुछ अलग तरह के कपड़े पहन कर आ गया जिसमें मैं अल पचीनो लग रहा था। कोई शक, कोई डाउट। तो आया, नागराज जी ने कहा कि ये पहनना चाहते हो आप? मैं बोला हाँ, मैं एक सरकार के ऑफिस में आया हूँ, बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला हूँ और असली मटका किंग हूँ, तो क्यों नहीं। तो कुछ मुझे लगा कि समथिंग डिडंट गो राइट विद हिम। सर आपको जो पहनना पहने, मेरा मन था आप वही पहने। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं सेट से गया भी नहीं, मैंने वहीं सबके सामने, पूरी यूनिट के सामने कपड़े चेंज किए, पुराने कपड़े पहने। इतना सम्मान है इनकी क्रिएटिविटी के बारे में मुझे। और जो आप कुछ ज्यादा दिन नहीं है, 17 अप्रैल को मटका किंग रिलीज होने वाली है। 17 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि द सिंसियरिटी ऑफ द डायरेक्टर, द सिंसियरिटी of the producers, the writers, everybody, Amazon being open-hearted in making it happen, everything making it happen. And, you know, some of the most wonderful talent that India has is part of this film. पर आप देखेंगे कि सबकी सिंसियरिटी ट्रांसलेट करेगी जब आप 17th को मटका किंग Amazon पर देखेंगे, तब पता चलेगा असली मटका किंग मैं हूं। जोर से बोलो जल्दी से। Give it up for Gulshan Grover, guys. Thank you. सिद्धार्थ जाधव, दगड़ू और ब्रिज, ये दोनों के बीच में जो ब्रिज है ना, इस पे नाचने का मन कर रहा है। आप इनके इस जर्नी में अपने रोल को कैसे देखते हैं? नमस्कार। ये सिर्फ ब्रिज की जर्नी नहीं है, ये ब्रिज के साथ साथ वो दगड़ू की भी जर्नी है। और मैं ऐसे बोलूँगा कि ब्रिज की जो जर्नी है वो ब्रिज से ज़्यादा दगड़ू ने बहुत देखी है। क्या बात। जो दगड़ू बैठा है, वो ब्रिज चल रहा है, रुक रहा है, थक रहा है, झगड़ रहा है अपने आप से, वो दगड़ू देख रहा है। तो ये जो कनेक्शन है ये ब्रिज और दगड़ू के कैरेक्टर का, ये बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर के साथ काम किया, जिनका नाम विजय वर्मा है। बहुत अच्छा बंदा है, अपने काम को लेके इतना सीधा है और अपने सह कलाकार को लेके इतना अच्छा है कि वो बढ़ावा देता है। और दगड़ू जो निखर के आया है ये सीरीज में, इसमें वो ब्रिज का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जर्नी वो दगड़ू ब्रिज के साथ देखी है और बहुत अच्छा लग रहा है इस जर्नी के उनके साथ सफर करके। लेकिन ब्रिज ऐसा बंदा है, ये डायलॉग नागराज सर ने लिखा है, लेकिन ये मैं अभय सर को
अमेजॉन को, सिद्धार्थ सर को, और स्पेशली नागराज सर को भी बोलता हूँ। जब ब्रिज दगड़ू को एक काम देता है और दगड़ू उनको बोलता है कि शुक्रिया सेठ, काम देने के लिए नहीं, भरोसा रखने के लिए। मुझे लगता है एज ए एक्टर इन्होंने मुझे जो मुझ पे भरोसा रखा है, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश मैं मटका किंग में कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और सेट तो है ही अच्छा, तो आप देखेंगे अच्छा लग रहा है। ये इतने महारथी कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्पेशली अश्विनी मैम, सिद्धार्थ सर, जिस तरीके से सपोर्ट करते थे एक्टर को। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट वेब सीरीज है, ये मैं पहली बार वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो माहौल है एक्टर को कंफर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभय सर ने बहुत सपोर्ट किया था, और नागराज सर के साथ काम करने का, मराठी इंडस्ट्री से हूँ, मराठी थिएटर से हूँ, लेकिन सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, और वो सर ने जो सिक्सर मारने को दिया है वो मटका किंग ही दिया है, तो मेरी तो लॉटरी लगी है। बिल्कुल मटका ही लग गया, यही कहेंगे सिद्धार्थ जी। सो ब्यूटीफुल, अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। थैंक यू। भूपेंद्र, आई लव यू सर। सेठ अभी है, ये आई लव यू वाला मोमेंट एक और बार कर लेंगे, मैंने बिगाड़ दिया, प्लीज। आई लव यू दगड़ू। आई लव यू सेठ। अच्छे लोग आपस में लव कर रहे हैं। भूपेंद्र, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आई वाज टू कम टू यू। मुझे बताइए, लक्ष्मण जो है ये अपने बड़े भैया के साए से दूर जाना चाहते हैं और खुद के लिए नाम बनाना चाहते हैं। ये ट्रेलर देखकर मैं सोच रही हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, व्हाट कैन यू टेल अस? बात स्टार्ट यहीं से होती है कि है ना? वो आई थिंक हम सभी लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं की शेडो से बाहर निकल के अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, और ये आइडिया बहुत बहुत रिलेटेबल है ऑडियंस के लिए, टू सी लक्ष्मण। और उसके बाद उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसकी अपनी वल्नरेबिलिटी है, उसका अपना एंग्स्ट है, जिसके अंदर वो अपना एक स्पेस ढूंढ रहा है अपने भाई की आंखों में, और उसी के बीच में आप उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे जैसे मैंने किया। मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ अपने आप को देखने के लिए, और बहुत खुश हूँ टू वर्क विद सच ग्रेट पीपल अराउंड मी। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू सिट हियर। आपके बड़े भाई जो अपने आप को ही देखना है, बस सबको नहीं देखना है। सबको विजय वर्मा को सबसे पहले, ये जो सिद्धार्थ यादव को, उसके बाद गुलशन सर को, सविता मनकर अपने आप को देखने के लिए बहुत उत्साहित है, तो छोड़ दो उसको, जैमी को, सभी। लव इट, लव इट। ये जो रिश्ता है ऑफ स्क्रीन भी बड़े छोटे का ही लग रहा है। दिस इज क्वाइट कूल। थैंक यू सो मच। एज यू नो, मेरे सवाल जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब आपकी बारी है। You know the jig, guys. It's pretty simple. I will be asking you to, there'll be a mic that will come to you if you raise your hand. And हमारे जितने भी किरदार हैं, हमारे जितने